तो हमारा क्या रहेगा, नरेशन का सेकंड लेक्चर रहेगा, राइट एवरीवन? Yes, Right? sir. We have completed already the first lecture of narration. क्या हमने complete कर चुका था? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चलिए, first of all, before starting your class, let me assure that am I audible everyone clearly? Yes, Yes, sir. sir. Very clearly. Okay. तो चलिए, अब जो है हम लोग सेकेंड लेक्चर में ये देखेंगे नरेशन के बारे में, ओके, कि कब हम लोग जब टेंस चेंज हो जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजिंग करते हैं, राइट एवरीवन? राइट? अभी तक हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में हमने देखा, ओके एवरीवन, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में हमने देखा, राइट एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जो कुछ भी मैंने बताया व्हाट इज नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में सबसे पहले कौन मुझे बताएगा? टेल मी। अनन्या। ओके अनन्या, आप ही बताओ, चलो। Sir, in the last class, we did about narration, and in that we read that narration is a part of grammar in which we study that how to express the words which are being said by the speaker. To वेरी गुड। express this sentence and statements, we use two ways, which is direct and indirect, and we call it as speech. In direct speech, we directly state that what is being said by the speaker in inverted commas, and the thing which is written in inverted commas is known as reported speech, and which is the outside of the inverted comma is known as the reported verb. After वेरी that, गुड अनन्या। after Yes. that we see about indirect speech. In that we see that while talking about direct speech, and when we have to state the object, it creates confusion. So we use the indirect form of narration, which is indirect speech. In this we use the actual words of speaker, and these are being transformed and then said in case of writing it, or in case of simply to say that if someone is saying that what that person has said. And we also need indirect speech to avoid the confusion while using direct speech, and while writing the direct speech. When we Okay. use reporting speech in present and future tense, we don't change the tenses. We don't change the tense. The subject of the and then we see about that how subject and object changes according to the subject, object, and the first person, second person, and the third person. वेरी गुड अनन्या। And then, sir, we have seen about how we change the subject and object in nominative case, possessive case, and objective case. Very good. And I have also taught you first rule about it. When reporting verb is in present tense or future tense, then what we have to do? Tell me. Sir, we don't changes the tense. Okay, give me some example and make me understand. For example, that he says a comma in inverted comma will write, he says I like mango. So while Okay. writing it into indirect speech, because as the reported verb is in present tense, and the reporting speech is also in present tense, so we'll write it as he says that he likes mango. So there is no change He in likes tense. mango. Okay. Yes, sir, he likes Okay. mango. We Very we good, Ananya. Very good. substitute. You have remembered each and everything. That is really good. And I hope that you will understand in the next, whatever we will read the rules very easily. Okay. So now, Drishti, chalo aap batao to. In next class, we look about many things. Firstly, we look at definition of narration. It is an act of reporting verb of speaker. Then we look that narration has two types: direct speech and indirect speech. Direct speech, the actual words of speaker are quoted as it without any change. And we look that exact verbs of speaker are enclosed in inverted comma. Uh, the 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 thing which is inside the inverted comma is reported speech, and the thing which is outside
the comma that is reporting verb or reporting speech. Indirect speech. The actual words of speakers are transformed and said or written in simple language. Example, he tells me that he is my friend. Then we look that subject will change according to first person, object will change according to second person, and there will be no change in subject in there will no change in third person. Very good. And then we look that if there is an object in reporting verb, say 2 plus object change in tell, says 2 plus object change in tells, say 2 plus object change in told. When we remove inverted comma, then we use that conjunction. Very Then good. we also look nominative case, possessive adjective, possessive pronoun, and objects. Possessive case is when a noun denotes position, ownership, or belongingness, that is known as possessive case. Example: this is my book. My is possessive adjective, and book is noun. Some uh, complete, sir. Okay, very good, Drishti. As you said, it is really very good. But guys, only 2 students are interested. What is about rest? और सभी कोई का क्या जो अभी तक किसी ने नहीं बोला? Okay, Srija, continue, Srija. Sir, And but Srija, in while speaking each and every things regarding narration, you have to give example also. Okay? sir, may I in Hindi, please? Okay, you can. सर लास्ट क्लास में हम लोग नरेशन के बारे में पढ़े थे सर, जिसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े थे. Your voice is not coming clearly, Srija. Will you speak once again more? सर लास्ट क्लास में हम लोग नरेशन के बारे में पढ़े थे. Okay. सर, इज इट क्लियर? Yes, yes. जिसमें हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या अलग अलग डिफिनेशन देखे थे. दैट की डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर. मतलब जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को हम लोग को बताता है जो स्पीकर बोलता है. एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट द स्पीकर हैज सेड विद अनदर वन. मतलब जो स्पीकर किसी और से बोलता है और जो सेकंड पर्सन होता है वो हम लोग को आके इन्फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. Very good. उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. और सर हम लोग जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं उन्हें हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं उन्हें हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं. एंड इन प्लेस ऑफ दैट जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम लोग सेड की प्लेस पे जहाँ पर सेड और सेज लिखा रहता है वहां पर हम लोग दैट का यूज करते हैं. से और सेज की जगह पे दैट का. सृजा, आपने क्या रिमेम्बर किया है अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को? नो सर, सॉरी. सृजा, यस सर. I am asking one question to you, that have you remembered each and everything? यस सर, रिमेम्बर बट अभी नहीं. Remember but अभी नहीं. What does it mean? Tell me. प्रैक्टिसिंग मतलब सर एक बार प्रैक्टिस करके नहीं आते, मतलब एक बार देख करके. Is it a excuse or true thing? सर ट्रू थिंग. This is not right, Srija. Okay, you should remember each and everything. Okay. ओके सर. चलिए next. Only 3 students have spoken. आप सभी क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरे को ये बताओ तो पहले आप लोग. Participants about 41. Okay, Astha. Astha. Am I audible, Astha? Aditi?
अपूर्वा, यस सर। चलिए नरेशन के बारे में आप बताइए तो। यस सर। सर हम लोग ने लास्ट क्लास में नरेशन पढ़ा था और इस चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और जो इनडायरेक्ट स्पीच का यूजेस होता है। तो नरेशन जैसे कि इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। इसमें टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में होता है जो स्पीकर जो है वो अपना एक्चुअल वर्ड्स बोले, और जो हम लोग जो सेंटेंस लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ड या रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रहता है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आर यू स्पीकिंग राइट? जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? विल यू स्पीक once again more? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मैसेज करके आप सभी बताओ, इज सी राइट और रॉन्ग? Wrong, sir. चलो आप अपूर्वा याद क्यों नहीं हुआ Obviously है? wrong, sir. यस Wrong. अपूर्वा याद क्यों नहीं हुआ है? क्या सर आप लोग मैंने को यही लगा? लिखा है। एक्चुअली आप सभी को यही लगा ना? नोट्स था ना अवेलेबल? यस सर। क्या उसमें यही लिखा हुआ है टर्न योर पेज? नो सर, शायद मैंने गलत। अपूर्वा आपने याद किया था क्या? सही से बताना आप। सर रिवीजन किया था बट ठीक है। इज इट गुड? नो सर। ये सही तरीका है? इतने मेहनत से आपको बताया जाता है, एक एक पॉइंट को बताया जा रहा है, बट आप लोग ऐसा करोगे जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो लोग आज अच्छा नहीं किए। लाइक सृजा, अपूर्वा, इवन यू पीपल आर नॉट रेजिंग योर हैंड। आप लोग अपना हैंड भी रेज नहीं कर रहे हो बताने के लिए। अनुजा, सर इन्वर्टेड कॉमा में तो रिपोर्टेड स्पीच है ना? आप पहले ना इन्वर्टेड कॉमा में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मैंने अभी हाँ। ऑन किया पीडीएफ। हाँ सही है, यस सर, तो मैंने भी वही लिखा है वो इन्वर्टेड बट बोला ये नहीं ना, बट आपने बोला ये नहीं। ओके तो नेक्स्ट टाइम अच्छे तरीके से रिमेम्बर हो जाएगा अपूर्वा। यस सर। ओके मैं आप ही से सबसे पहले पूछूंगा। ओके सर। ओके अनुजा नेक्स्ट। यस सर। चलिए बताइए तो आप से जो रहता है वर्ड से, अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता, इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर से, तब हम क्या करेंगे उसके बारे में, जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, व्हाइल मेकिंग इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, व्हाट विल वी डू? फिर हम लोग सेज को चेंज नहीं करेंगे। ओके चलो नरेशन का डेफिनेशन दो थोड़ा सा मेरे को आप। Sir, it is an act of reporting words of a speaker. ओके तो बताओ और आगे बताओ कुछ। And there are two ways of reporting the words of a speaker. First, direct speech, and second one is indirect speech. In direct speech, the actual words of a speaker are said or written without any change, and the speaker that the exact words of a speaker is enclosed in inverted comma. Example, he said, "I am going." And we can also say that if before inverted comma the sentence is called the reporting verb, and after comma the part of sentence is called reported speech. And second one is Anuja, indirect. make me clear that I am not getting your points. Okay, so first of all, make me clear that whatever you are speaking. Okay, Sir, speak first of all slowly by slowly. Okay. Okay, sir. Sir, अनुजा याद किए हो आप? मेरे को पहले क्लियरली ये बताओ। Yes sir. इसलिए बताना है। Yes sir. अच्छा याद किए हो? Yes. लग तो नहीं रहा है एकदम बताने से। कितनी बार आपने रिवीजन किया है? टेल मी, बताओ आप लोग बताओ।
सर आपके पढ़ाने के बाद एक बार रिवीजन किया है। बस एक बार से हो जाएगा। चलो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बताओ। सर पॉजिटिव एग्जेक्टिव पोजीशन शो करता है, ऑनरशिप शो करता है और वो नाउन के पहले आता है। ओके चलो एक मैंने सेंटेंस बोला, ही सेज टू मी, ओके ही सेज टू मी कॉमा आफ्टर दैट इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। चलो बनाओ तो इसको बनाओ। he says to me and speak। क्या आप पेन और पेंसिल के साथ, पेन और नोटबुक के साथ हो? अनुजा, I'm talking to you। Yes sir, yes sir. He tells me that he is his or her friend। his or her friend। क्या यही पढ़े हो आप? क्या ये सेंटेंस राइट है? आई एम आस्किंग टू एवरीवन। क्या My इनमें indirect- sorry sir, my friend sir, my friend। No, sir. my friend, are you speaking Sir, right? please repeat question। He says to me I am your friend। this is a very simple question। सर मैं आंसर बताऊं? no I'm asking to Anuja। she has to speak। Anuja, you have only few He minutes, tells speak fast। me that he is my friend। he is my friend, but why you are not going to speak it once time? एक बार में आप क्यों नहीं बोल पा रही हो अनुजा? आपको मैंने बोला था ना, मैंने तो ये भी बोला कि आप लोग वीडियोस को देखो। ओके यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, let me speak। if I am speaking then you have to hear। okay first of all let me complete and after that you will give excuse whatever you have। okay Yes sir। today I am not happy with everyone guys, because as you are giving response in your class this is really bad। और मैंने क्लास 9 से ना कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज सबसे ज्यादा अगर मजा आता है ना, इंटरेस्ट आता है तो आप ही लोगों को पढ़ाने में आता है। बिकॉज यू पीपल आस्क क्वेश्चन, आप पूछते हो, बताने में अच्छा लगता है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, बट फीडबैक भी तो आना चाहिए ना। आप लोग अच्छे से बताओ, आज अच्छा नाम। आप लोगों को तो लगा कि सर तो सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, कुछ बुक स्टार्ट करेंगे, बट ये भी तो था ना कि नरेशन का मैंने एक पार्ट आप लोगों को पढ़ाया था, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ और उसको देखता हूँ, मात्र 2 व्यूज होता है, 3 व्यूज होता है, बट यू पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव बेनिफिट। आप लोग उसका प्रॉफिट नहीं लेते हो। ओके आज तो मतलब कि क्या बताया, ना ही सृजा ने सही तरीके से बताया, ना ही अपूर्वा ने बताया, और अनुजा का भी वही है। दृष्टि का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, अनन्या बहुत अच्छा कर रही है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वी हैव लैकनेस ऑफ टाइम गाइस। इफ आई एम आस्किंग इन योर क्लास इन दैट प्रीशियस टाइम, दैट ओनली फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए। ओके चलो अंकिता आप बताओ तो अंकिता। अनुजा क्या नेक्स्ट क्लास में सारा कुछ याद हो जाएगा अच्छे से? यस सर। ओके और कितने टाइम से आप रिवाइज कीजिएगा जब तक कि क्लियर ना हो? यस सर। फिर नेक्स्ट अंकिता, यस कंटिन्यू। Sir, in last class, we have read about narration. Narration, it is an act of reporting verb of speakers. There are mainly 2 ways of reporting the word of speakers: direct speech and indirect speech. Direct speech are the actual words of a speaker and the exact words of the speaker. The indirect speech is the actual word of speaker are transformed and said or written in a simple language. Okay. Okay, sir, we have also read about case, possessive case, nominative case, and आई का सारा फॉर्म मेरे को बता दो। नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। I, nominative case I, possessive case my,
possessive pronoun mine. possessive adjective or possessive pronoun? Is it possessive adjective or possessive pronoun? Sir, what? Is it possessive adjective or possessive pronoun? Sir, possessive adjective. Okay. Why? Possessive pronoun mine. An object में me. Okay, चलो आप सी का बताओ. Sir, she. Yes. She, her, hers, and object her. Okay. अंकिता एक सेंटेंस बनाओ तो आप, मैंने बोल रहा हूँ. He says to me, I am your friend. He says to me, I am your friend, and you are my friend. Okay. Make this sentence. He tells me that he is my friend, and I am his friend. And I am his friend. And I am his friend. His Very good. friend. Very good. Very good, Anuja. But you have to remember each and everything. Sir, my clear. name is Okay. Ankita. Ankita, okay. But it seems Anuja. Yes, Ankita. Very good, Ankita. Okay, but there is a need to remember each and everything which I have taught you, okay, regarding that. Because when you start speaking about narration, then you can speak each and everything line by line. Okay, Ankita? Okay, sir. ओके वेरी गुड. तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्लास में जो हमने कुछ पढ़ा था प्रीवियस क्लास में नरेशन के बारे में. ओके एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग दैट द न्यू पॉइंट आई हैव टू स्पीक द समरी. ओके, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा समरी टाइप करके थोड़ा सा मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में बता देता हूँ. ओके एवरीवन, जो क्यों पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं होंगे वो भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. ओके तो देखो मैंने क्या बताया था ना नरेशन के बारे में कि ये क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है. ओके, इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर. ये एक वे होता है, ये एक तरीका होता है स्पीकर को अपने शब्दों को रखने का, इवन इन रिटन वे और स्पीकिंग वे. ओके एवरीवन, अब जब नरेशन की चर्चा करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स होता है. कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम कितने टाइप से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं मेनली, तो देयर आर टू टाइप्स. ओके, कौन कौन सा, डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच. मैंने पहले किसके बारे में बताया था, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है. ओके, जो स्पीकर का मेन वर्ड्स होता है वो क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है बाय इन्वर्टेड कोमा. वो क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है बाय इन्वर्टेड कोमा. पहला मैंने ये बताया. दूसरा चीज मैंने डायरेक्ट स्पीच में आपको ये बताया था कि जो एक्चुअल वर्ड होता है स्पीकर का, ठीक है ना, अरे बात समझ में, अरे बात समझ में ना, तो जो एक्चुअल वर्ड्स होता है स्पीकर का उसमें हम बिना कोई चेंजिंग किए हूबहू क्या बोलते हैं, किसी के सामने उस वर्ड को एक्सप्रेस कर देते हैं या राइट कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके, अगर इससे ज्यादा डिटेल तरीके से समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिएगा. ओके, एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. उसके बाद हमने देखा इनडायरेक्ट स्पीच. तो सबसे पहले कि इनडायरेक्ट स्पीच का यूज क्यों है, तो मैंने ये क्लियर किया था कि ये जो कंफ्यूजन होता है ना उसको अवॉइड करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच का यूज करते हैं. ओके एवरीवन, हमारी बात समझ में. मैंने ये बताया था इनडायरेक्ट स्पीच में, मैंने ये भी बताया था कि जो स्पीकर का वर्ड्स होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी बदल देते हैं और सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं या लिखते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. यहाँ तक सभी को क्लियर है. ओके, मैंने ये भी बताया था कि देखो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कोमा में गिरा हुआ है वर्ड, स्पीकर का मेन वर्ड कैसे, ही सेज टू मी, तो क्या कहा, आई एम योर फ्रेंड, यानी यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि आई एम योर फ्रेंड. अरे बात समझ में. तो जो इनक्लोज्ड है वो क्या है आपका, तो डायरेक्ट में दिख रहा है. क्या यहाँ पे कोई इनक्लोज्ड है, इन्वर्टेड कोमा में गिरा हुआ है, नहीं, तो ये इनडायरेक्ट में है. अरे बात समझ में. फिर उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को
कि व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच, ओके थोड़ा सा मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में समझाया था। देखो तो मैंने ये बताया था कि इन्वर्टेड कोमा की जो बाहर रहता है, जो भी इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है, ओके वो क्या होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, राइट एवरीवन, मैंने बताया था। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनक्लोज सेंटेंस, जो कि घिरा हुआ रहता है, जो कि क्या है इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ है, उससे हम क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ओके क्या मैंने सभी को बताया था रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। ओके मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि जब आप याद कीजिएगा व्हेन यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके ओनली रिमेंबर वन, इधर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आप क्या करो एक ही को याद करो, एक रिपोर्टिंग वर्ब को याद करो या रिपोर्टेड स्पीच को याद करो। तो मैंने ये भी बताया था आपको सिंपल क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब को याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। तो अब अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को ये मालूम चला कि जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वो मेरा क्या रिपोर्टिंग, वो मेरा क्या है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमा से घिरा हुआ है ओके वो मेरा क्या है रिपोर्टेड स्पीच। गेटिंग एवरीवन, क्या सभी कोई को रिकॉल हो रहा है? Yes, टेल मी sir. यस और नो। Yes, sir. Yes. Sir, ओके Yes, sir. sir, I have a question. हाँ पूछिए। सर अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो उसमें जो फुल स्टॉप होता है वो हम लोग पूरे सेंटेंस के बाहर डालते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में होता है डायरेक्ट स्पीच तो उसमें क्वेश्चन मार्क कहाँ डालेंगे? आई विल टेल यू। ओके जब आपको हम इनडायरेक्ट जब क्वेश्चन वाला पार्ट पढ़ाएंगे ना, अरे बात समझ में, यस सर। उस समय मैं आपको वो सारा कुछ बताऊंगा। अरे बात समझ में, अभी Okay, यहाँ पे sir. फोकस करो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अरे बात समझ में ना, अब तो देखो यहाँ तक हम लोग का क्लियर था। फिर मैंने पहला रूल क्या बताया, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पोर्शन जब हमारा किस में रहता है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ओके एवरीवन, अब देखो थोड़ा सा जो चेंजिंग होता है फर्स्ट पर्सन का वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन का तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग होता है। थर्ड पर्सन का ओके तो देयर विल बी नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। मैंने ये भी बोला देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन का एस फॉर सब्जेक्ट, अरे बस समझ में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या एस ओ एन मिला तीनों में से एस ओ एन? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ Yes, से sir. फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपका निकल गया। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब में राइट एवरीवन से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो से किस में चेंज हो जाएगा, से में। वैसे ही सो ऑन सेड, सेड में चेंज हो जाता है। मैंने बताया था ना ये ऑब्जेक्ट वाला सारा कुछ मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। गेटिंग, अगर बहुत ज्यादा डिटेल में ऑब्जेक्ट को समझना है तो फर्स्ट वाले वीडियो को आप एक बार फिर से देखिएगा। ओके और जिसको थोड़ा सा भी डाउट्स हो रहा है वो जरूर देखें फर्स्ट वाले वीडियो को, क्लियरली समझ में आ जाएगा एवरीथिंग। ओके अब आगे देखते हैं। इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ड में क्या रहे आपका ऑब्जेक्ट रहे तो से किस में बदल जाता है, टेल में। सृजा यही ना तुम्हारा क्वेश्चन था, सेज किस में बदल जाता है, सेज टू ऑब्जेक्ट टेल्स में, और सेड टू किस में बदल जाता है, कनिष्क। कनिष्का क्यों लेफ्ट कर रही हो आप, आई हैव रिटन योर नेम। ओके अब देखो इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हम लोग किसका यूज करते हैं, दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। मैंने ये नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट ये सारा कुछ बता दिया था। ओके अब चलो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग किए थे थोड़ा सा उसको। जैसे यहाँ पे देखो ही सेज टू मी, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में, टेल मी एवरीवन, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, Present tense. Present tense. Sir, simple present. हाँ Present प्रेजेंट टेंस। indefinite tense. तो प्रेजेंट टेंस अब देखो जो प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इधर वाला भी क्या होता है, जब इनडायरेक्ट में बताते हैं तो इसका टेंस भी चेंज नहीं होता है। मैंने बताया था Yes, ना sir. आप Yes, sir. देखो। No change. तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था, ध्यान से सुनना, कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें हम किसे सर्च करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें किसे सर्च करना रहता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके और जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हम किस चीज को देखते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। राइट एवरीवन, ये भी मैंने Yes. बताया था। अब देखो Yes. ही जो है मेरा वो क्या है, सब्जेक्ट है। ही क्या है मेरा
सब्जेक्ट है। subject. ओके अब देखो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, जिन लोगों ने पहले क्लास को बंक किया था या अब्सेंट थे उस क्लास में, दे हैव टू सी, बिकॉज आई एम टेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ, खासकर जो अब्सेंट किए थे, बिकॉज जो आए थे क्लास में वो समझ चुके होंगे, आई नो दैट। ओके अब देखो, तो ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो ही आपका कन्वर्ट हो गया ही में, सेज टू किस में हो गया, टेल्स में। अरे बात समझ में ना, उसके बाद टू हट जाता है, मालूम है ना क्या टू का यूज यहाँ पे करेंगे, ही टेल्स मी। No, sir. No, No, sir. sir. Object है. इन्वर्टेड No, कोमा sir. हटा, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ही हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ही के साथ किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे हम लोग। No, sir. No, sir. ही इज, और देखो योर भी मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है ना, योर भी मेरा क्या है, ये भी सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो माई हो जाएगा, माई फ्रेंड। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट एवरीवन। No, sir. अच्छा चलो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा मेरे को बता दो सब, एक दो क्वेश्चन को मैसेज करना, आई हैव टू सी दैट इसके आंसर सही होता है। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प। चलो बताओ, तो ये सारा क्वेश्चन मैंने दिया भी था आप लोगों को बनाने के लिए। सर योर वॉइस इज कमिंग इन स्लो मोशन, इज इट हैपनिंग, क्या मेरा आवाज स्लो मोशन में आ रहा है? No, sir. बिल्कुल sir. क्लियर है. ओके तो चलो देखते हैं, रजनीश में ना आया, सीता विल टेल्स, रजनीश आपका रॉन्ग है, ध्यान से देखो कहाँ पे रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा के लिए रजनीश आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट I have to see, waiting for your message। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ सब। अनुजा राइट, वेरी गुड अनुजा। अनन्या वेरी गुड। साकेत आई टेल कैसे होगा साकेत, एकदम तुमने पिछले क्लास को अच्छे तरीके से नहीं देखा है इसलिए ऐसे हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मैंने क्वेश्चन किसमें दिया था? Sir, future tense. तो ये सीता जो बोल रहे हैं, No, will sir. नहीं करके हम पहला वाला बना दिए, हमको लगा सबसे फर्स्ट वाला दिया. सीता विल Sorry. टेल, इस क्वेश्चन अच्छा, को देखो, सीता विल टेल आई नीड योर हेल्प। आप देखो आपने किस तरीके से इसको गलत बनाया है, ध्यान से देखिएगा। सीता विल टेल मी दैट शी नीड्स माय हेल्प, वेरी गुड प्रज्ञा प्रियदर्शी। सीता विल से मी दैट शी नीड्स माय हेल्प, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ये गड़बड़ है समीर आपका, समीर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, दिस इज नॉट गुड समीर। ओके चलो इसको देखो, मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, सीता विल्स होगा यही साकेत, टाइपिंग में गलत हो गया सर, टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा है। चलो सर देखते हैं, लैपटॉप में ना. चलो अब देखना किसका गलत है किसका सही है, आप ही लोग बताना। चलो मैं बना रहा हूँ, फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड लिसन केयरफुली। मुझे आपका गड़बड़ है, एकदम रॉन्ग है, देखो ध्यान नहीं दे रहे हो लोग आप लोग अच्छे तरीके से, कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है इसलिए ऐसे हो रहा है। सीता विल, देखो इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या होगा, अंकिता एकदम गड़बड़ है, रॉन्ग है, टोल्ड में बनेगा अंकिता। मैंने पहले क्या बोला, अपूर्वा आपका भी रॉन्ग है। मैंने क्या बोला था पहले आप लोगों को कि अगर टेंस आपका किस चीज में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब मींस वर्ड, ठीक है ना, इन्वर्टेड कोमा का बाहर वाला पार्ट, आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं जब इसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं, अब कोई मैसेज नहीं करेगा, एवरीवन हैज टू हियर। केतान आपका राइट है, ओके अब कोई नहीं करेगा मैसेज, अब सब कोई सुनेगा। देखो सीता विल टेल मी, ये क्या, सीता विल टेल मी, यही क्वेश्चन है ना आप लोगों का, सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, देखो सीता विल का विल ही होगा, उसके बाद क्या है, टेल है ना टेल, तो पहले ही से टेल चेंज कर दिया गया है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई नहीं, बढ़िया है जो टेल रहेगा टेल ही, तो सीता विल टेल मी
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा इन्वर्टेड कोमा यहाँ से हटा और मैंने यूज किया क्या, दैट। क्या यूज किया मैंने, दैट। अब देखो आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इज इट अ फर्स्ट पर्सन और नॉट? पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन तो पहचानो आप लोग, फर्स्ट पर्सन। ये मेरा नीड क्या है, वर्ब है, और ये क्या है आपका, योर सेकंड पर्सन है। ओके, और हेल्प भी यहाँ पे बढ़े। देखो तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारी बात समझ में, क्योंकि ये सेंटेंस आई नीड योर हेल्प, आई सब्जेक्ट, नीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, योर हेल्प, यानी सेंटेंस किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, मेरे को बताओ आप लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हमारी बात समझ में, तो आई के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग आई सी में वो चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू सी, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज सी नीड्स। ओके, और ये देखो सी नीड्स, और योर है ना यहाँ पे अपूर्वा, यहाँ पे हमने यूज किया योर, तो योर क्या होता है, सेकंड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई हेल्प हो जाएगा। ओके, शी नीड्स माई हेल्प। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, द बॉय सेज टू मी यू वर आवर फ्रेंड एंड वी वर योर फ्रेंड्स। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो सभी कोई देखता हूँ इसका आंसर कौन पहले देता है, और किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से बनाओ आप लोग। Akshay Ratna, the boy tell me that. Okay, I will tell. चलिए अभी तक दो आदमियों का आंसर आया है, रजनीश और अक्षर का। प्रज्ञा आपसे, प्रज्ञा मैं आपका नेम राइट कर ले रहा हूँ। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिएगा ना कि जो मैंने नरेशन पढ़ाया है और टेंस पढ़ाया है उसको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिएगा। ओके, क्योंकि थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। आस्था रॉन्ग, टोल्ड का यूज कैसे करेंगे आस्था? क्या सेंटेंस में सैड लिखा है मैंने? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन को देखिए। पहले क्या, द बॉय सेज टू मी, तो सबसे पहले जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, चलो अब कोई मैसेज नहीं करेगा। ओके, जस्ट फोकस ऑन योर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन। अपूर्वा आई विल टेल, आप मैचअप कर लेना आपका राइट है या रॉन्ग है। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। द बॉयज सेज, द बॉयज से टू मी, है ना। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉयज क्या है, आपका सब्जेक्ट है, उसके नीचे सब्जेक्ट लगाओ आप लोग। ओके, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके एवरीवन, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है। ओके, उसके बाद आवर क्या है आपका, तो फर्स्ट पर्सन का क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। और ये आवर क्या होता है, आवर के बाद फ्रेंड है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव को बता रहा है। अब उसके बाद एंड लगा हुआ है, एंड। उसके बाद देखो वी, ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखो वी के नीचे। अरे बात समझ में, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। वर्ड और योर, योर क्या है आपका सेकंड पर्सन है। योर क्या है आपका सेकंड पर्सन। तो क्या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सबने लिखा?
टेल मी एवरीवन, क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप सभी ने लिखा? क्वेश्चन को इजी नहीं समझो, यही मेन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज करना। ये जिसको आ गया वो काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। अपूर्वा ने बोला यस सर आई हैव रिटन, वेरी गुड। क्या सभी ने लिखा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट लिखा, आपने ऑब्जेक्ट लिखा, क्या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप सभी ने लिखा? वेरी गुड। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। ओके एवरीवन, चलिए लेट अस सी दैट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके यस सर अंकिता, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मैंने देखा, अब थोड़ा सा मैसेज करना बंद करो मेरे को, ठीक है? समझो सब यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो द बॉयज से टू मी, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द बॉयज यहाँ पे मी लगा हुआ है तो से किस में बदल जाएगा? जब रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट रहता है तो किस में चेंज हो जाता है? बताओ आप सब मेरे को, किसमें चेंज हो जाता है? से टू में किसमें? टेल्स में चेंज हो जाएगा। अपूर्वा यहाँ पे से लिखा हुआ है तो टेल्स में कैसे अपूर्वा चेंज हो जाएगा? टेल में। अपूर्वा मेरे को बताओ आप, टेल जब में यहाँ पे change हो से है, सर टेल मैं गलती से ओके तो चलो गलती से भी ऐसा गलती ना करो आप। ओके अब चलो तो देखते हैं इस Okay, क्वेश्चन sir. को। तो बॉयज ठीक है ना, क्योंकि द बॉयज है, बहुत सारे लड़का है। ओके टेल, क्या टेल के बाद टू का यूज करेंगे? मेरे को बताओ सर, यस और नो बोलो। नो सर। नो सर, नो मी सर, दैट। बॉयज, अच्छा तो चलो तो बॉयज टेल मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, मैंने दैट लगाया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? द बॉयज टेल मी दैट, क्या No, यहाँ sir. तक किसी को कोई दिक्कत? नो श्योर। ओके अब देखो यू क्या है, मेरा सेकंड पर्सन है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना? Yes, तो sir. क्या मैं यहाँ पे Yes, sir. आई लिखूं, क्या यहाँ पे मैं आई लिखूं तो करेक्ट होगा ना? सही होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. yes sir. सभी कोई बोलो आई। ओके वेरी गुड। तो आई के साथ क्या मेरा वर्ड लगेगा कि वाज हो जाएगा? Was लगेगा। वाज का यूज करेंगे बिकॉज हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ड मेरा किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, तो जो भी टेंस रहता है वही टेंस हम रखते हैं। ओके तो आई वाज। अब देखो यहाँ पे आवर है, इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझना। आवर मींस पॉजेसिव, आवर के बाद फ्रेंड है, नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आवर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है ना, तो द Yes, बॉयज का अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि दे में चला गया। Yes Yes, sir. और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? मेरे को बताओ सर। There. There. देयर। There. मैंने इसके बाद क्या लिखा? ओके आई वाज देयर फ्रेंड। ओके एंड उसके बाद मैंने लिखा एंड। अब देखो यहाँ पे वी है, तो वी क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। यस मेरी सर। बात समझ में ना? तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? द बॉयज के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट। तो फिर क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। Yes, दे, sir. Yes sir. दे, Yes, sir. अब दे के साथ तो वर ही करते हैं, दे वर। ओके अब देखो यहाँ पे योर है, तो योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? माई फ्रेंड्स। तो क्या सभी कोई का यही आंसर आया है? Yes. किसी को कोई Yes, sir. किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, देन यू हैव टू रेज योर हैंड। वंस अगेन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। फिर से मैं समझाऊंगा। देखो यही मेन है, चेंज करना सीख लेना। दिव्यांशु कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट करके बताइए आप लोग मेरे को, क्या इसमें कहीं प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई ओके आस्था कोई नहीं, वंस अगेन यू हैव टू मेक, फिर से बनाना है। ये सब क्वेश्चन है इसीलिए दिया गया है। जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, वो सब क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इस पे आप वर्क कर लोगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को 4 and 5 टाइम्स आप बना लोगे, आफ्टर दैट यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को भी? सर ऑल क्लियर कंसेप्ट। ओके वेरी गुड अपूर्वा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक तो मैं बता रहा था आप लोगों को। प्रॉब्लम है क्या? सॉरी सर, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कहाँ प्रॉब्लम है? बोलो। सर जो लास्ट वाला बोले वी वेयर योर फ्रेंड। तो वी वर योर फ्रेंड्स।
ओके तो वी जो है मेरा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे भी इसको करो ना, वी को पहले लिखो, वी कौन सा पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म आता है ना, Yes, उसके बाद योर क्या है सेकंड Yes, पर्सन, तो वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो द बॉयज के लिए प्लूरल जो आप प्रोनाउन यूज करोगे किस प्रोनाउन का यूज करोगे, किस प्रोनाउन का यूज करोगे, दे का यूज करोगे ना, तो वी किसके Yes, अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग, तो दे वर्ड, और देखो योर है तो योर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माय फ्रेंड्स। ओके yes. आने बात समझ में। अब देखो, अब सेकंड रूल पढ़ते हैं। देखो अभी तक तो हमने ये पढ़ा, एकदम क्लियरली समझिएगा आप लोग मेरी बातों को। अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में रहता है, क्या रहता है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक इट इन इनडायरेक्ट स्पीच, वी डू नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है ना, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसका हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं, राइट एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर था। अब देखो लेकिन क्या होता है, अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को छोड़ के रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले पार्ट में अगर पास्ट टेंस का यूज किया गया है, कोई भी पास्ट टेंस का, आड़ी बात समझ में ना, तो सारा प्रेजेंट टेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच में रहता है, ठीक है, वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स, ओके, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब, अरे बात समझ में ना, और प्रिंसिपल वर्ब अब क्या रहे, दूसरा रूल कि पास्ट टेंस में रहे, किसमें रहे, बोलो सब मेरे साथ, पास्ट टेंस, वेरी गुड, पास्ट टेंस में रहे। देखो पास्ट टेंस करने का मतलब क्या है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा के बाहर ना वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया गया हो। पहचानने का सिंपल सा तरीका, अभी तक आपने देखा प्रेजेंट टेंस वाले क्वेश्चन को, तो क्या सब में से का यूज किया गया है, सेज का यूज किया गया है, या विल से का यूज किया गया है, बताओ तो मेरे को, बताओ तो, इसी का ना यूज किया गया था। जहां पे मैंने विल से देखा रिपोर्टिंग वर्ड में, तो मैंने कहा कि ये मैंने क्या फ्यूचर में, जहां पे मैंने सिस देखा तो मैंने क्या कहा कि ये प्रेजेंट टेंस में, मैंने ये सारा कुछ बताया था ना, बोलो। ओके, बट अब क्या करना है कि दूसरा रूल ये बोलता है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, किसी टेंस में हो, सिंपली भाषा में समझो, पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस करने का मतलब क्या, वहां पे सेड लिखा हुआ मिले आपको, क्या लिखा हुआ मिले, देखो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ना, इसी को ना रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ग्रंथों में कहा गया है इसी को ही ना रिपोर्टिंग वर्ब, राइट एवरीवन, कहा गया है ना, यस ओके। अब आप लोग बताना किस ग्रंथ में कहा गया है इसको। अब देखो, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा माइंड का यूटिलाइज करना है और चेंज करना है। और जनरली ना बहुत लोगों को इस टाइप के नरेशन में प्रॉब्लम होता है, अरे बात समझ में, तो अच्छे से समझना है। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट टेंस अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल जाएगा, दैट विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब समझो कैसे, फिर मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, ही सेड लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ड, इसके नीचे पहले रिपोर्टिंग वर्ड लिखते हैं। तो मैंने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ड मेरा किस में है, पास्ट टेंस में। मैंने ध्यान से देखा कि ये सेंटेंस क्या कर रहा है, चीख रहा है कि आई एम इन पास्ट टेंस, बोले कि बढ़िया बात, ठीक है। तो ही सेड, अब देखो आगे बात समझ में, ही सेड। अब मैंने देखा यहाँ पे सेंटेंस को, आई लाइक फिश वेरी मच। अच्छा ये वाला पोर्शन जो इन्वर्टेड कोमा में है वो किस टेंस में है, मेरे को बताओ तो। आई लाइक, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ना बाबू। तो यही क्या Yes, करेंगे हम लोग, ओके, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरा ये वर्ड है जो रिपोर्टेड स्पीच में दिख रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेरा ये जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो चेंज होकर किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखो कैसे करेंगे, ही सेड, अरे बात समझ में, ही सेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं ना है, अगर ऑब्जेक्ट रहता सेड के बाद, दैट वी विल चेंज इनटू टोल्ड में, किसमें हम लोग चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं,
आ रहा है ना सभी को समझ में? सभी कोई बोलेगा, ठीक है? और नहीं आ रहा है देन यू हैव टू आस्क। अभी आपको पूछना है, यू हैव टू आस्क 50 टाइम्स, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, ओके? बट सीखना है, यू हैव टू मेक दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इन योर माइंड दैट आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है। और अगर तुम सच्चे दिल से अगर किसी चीज को चाहोगे ना सीखने को, आ रही बात समझ में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख सकते हो, ठीक है? बस अब आप में क्या रहना चाहिए, ईगरनेस रहना चाहिए, ओके एवरीवन? ओके, बोलो सब, क्या हो गया आज? Yes, फास्टिंग sir. है? No, sir. No, sir. मेरे को तो लग रहा है फास्टिंग है आज। No, sir. No, sir. अच्छा, वेरी गुड। तो देखो, तो ही सेड में क्यों चेंज हुआ, मेरे को कोई बताएगा? इनडायरेक्ट में भी सेड में क्यों चेंज हुआ? एनीवन? कोई भी? सर क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। वहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। वेरी गुड। तो ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा, उसके बाद हमने किस चीज का यूज किया? That. conjunction. कंजक्शन, ओके वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे जो ये जो इनक्लोज्ड है, उसमें मैंने आपको क्या सर्च करने के लिए बोला था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मैंने Yes, sir. पूरे अपने नजर को कंसंट्रेट कर कर देखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? वी गॉट दैट देयर इज ओनली वन पर्सन एंड दैट इज आई, एंड इट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। इसे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Obviously. Yes, sir. धन्यवाद। तो चलिए, तो यहाँ पे जो आई है सब्जेक्ट है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? Subject. Subject. He के साथ। अब देखो, he के अनुसार। बस अब यहीं पे एक चीज समझना है, जो कि ये कॉन्सेप्ट न्यू है, इसी को एक मेन चीज समझना है। इसने क्या कहा कि ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ठीक है ना? अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जा रहा है? सिंपल पास। Simple past. जो नहीं बोल रहा है ना, उसको लग रहा है कुछ आईज में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग, ओके? तो सिंपल Yes. पास्ट में बदल जा रहा है। तो देखो, मैंने देखा कि डायरेक्ट में मेरा ये टेंस किसमें है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब समझ में Yes, sir. आएगा जिसको स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है ना? Why was I saying to all of you for remembering all structure? That is the main reason behind it. यही मेन Yes, कारण sir. है इसके पीछे। मैंने आप सभी से बोला कि आप लोग इसे स्ट्रक्चर को याद कर लो। तो अब देखो, आई यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब शैल नहीं लगा रहता है, विल नहीं लगा रहता है, तब किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। तो जब इसको हम पास्ट में बदलेंगे तो ही का क्या हो जाएगा? वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे ना? Yes, sir. वर्ब का सेकंड फॉर्म, तब ना पास्ट में बदलेगा। Yes, sir. सिंपल पास्ट का क्या होता है रूल? सब्जेक्ट प्लस Verb to plus subject. G2 plus object. Object. तो अब देखो यहाँ पे आप सभी, ही क्या हो जाएगा? ही के बाद लाइक फिश वेरी मच। क्या समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Very clear. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को बनाओ। ही सेड आई एम अनवेल। चलो इसको बनाओ तो आप लोग। He said that he was unwell. वेरी गुड। He said that he was unwell. चलो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने ये बताया था ना कि जब एम अकेले रहता है और मेन वर्ब की तरह वर्क करता है तो प्रेजेंट टेंस में होता है। मैंने बताया था सिंपल, जब मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था तो, राइट? बताया था कि नहीं बताया था? एम रहता है, इज रहता है, आर रहता है। Yes, sir. मैंने बताया था ना जब मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करता है तो, Yes, ओके? sir. Yes, sir. तो अब ये समझ लो आप लोग, जैसे मैंने आप सभी को बताया, ओके? देखो इसका बेनिफिट का कितना मिल रहा है ना? ये एम Sir. वर्ड को भी समझने का। तो अब देखो, Yes, sir. मैंने देखा यहाँ पे ये सेड है, ये तो पहचान मेरा यहाँ पे चिक चिक के बोल रहा है रिपोर्टिंग वर्ड क्या है? मीन पास्ट टेंस, ठीक है ना? मैं पास्ट टेंस में हूँ। तो ही सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा, दैट का यूज हमने किया, एंड आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन एंड दैट विल बी I will change according to subject. Okay, everyone? Okay, तो ये क्या हो जाएगा? He हो जाएगा। He was unwell. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. अब चलिए, The background से आवाज आ रहा है. ओके, आप लोग ऐसा नहीं करो। हमारी बात समझ में? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे ही अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। हमारी बात समझ में? He said, ये रिपोर्टिंग वर्ड मेरा किसमें है? किसमें है? पास्ट टेंस में है ना? तो देखो ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई यानी सब्जेक्ट, इसके बाद एम
और उसके बाद क्या है वर्ब फोर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था ना कि कंटिन्यूअस में होता है। यस सर, Yes, वेरी sir. इंपॉर्टेंट। Yes, sir. अब देखो इनडायरेक्ट में इसको क्या करते हैं, क्या सेड को टोल्ड में यहाँ पे मैं चेंज कर पाऊंगा? No, sir. No, sir. नो सर, नहीं हो ऑब्जेक्ट पाएगा ना, नहीं No, sir. Sir, ऑब्जेक्ट object नहीं नहीं है. है। वेरी गुड। तो अब देखो ही सेड दैट, अब क्या होगा फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ही। Subject he. तो अब Subject देखो he. पास्ट कंटिन्यूअस कितना इजी होता है, इजी मार की जगह पे क्या लग जाता है, वाज वर्ड लग जाता Was है। where ही वाज plus राइटिंग अ verb. पोएम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। No, अब देखो sir. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। ही सेड माय मास्टर इज राइटिंग लेटर्स। ओके, तो देखो ही सेड, तो ही सेड पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब में किसमें है, पास्ट टेंस में। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग बोलते हैं, राइट एवरीवन। तो ही Yes, सेड sir. इन्वर्टेड कोमा हटा, दैट मैंने यूज किया। अब देखो यहाँ पे माई है और उसके बाद क्या है, नाउन है। माई है और उसके बाद क्या है, नाउन। तो सबसे पहले माई कौन से पर्सन में आता है, पहले मैंने क्या बोला था, पर्सन पहचानो। First कौन सा? person. फर्स्ट पर्सन। First First अब ये person. पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है? Positive adjective. तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? Subject. Yes. सब्जेक्ट के Subject. अनुसार। Subject. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, He. तो क्या यहाँ पे हम ही लिखेंगे कि ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेंगे? ही का He पॉजिटिव। का positive He का adjective. positive adjective. Positive adjective. क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? ही Yes, sir, very clear. मास्टर Yes, sir. वाज राइटिंग अ लेटर्स। अब देखो थोड़ा सा मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि व्हेन रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, क्या अब समझ में आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब या जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है। अरे बात समझ में? तो जब ये पास्ट टेंस में रहता है तब हम क्या करते हैं, जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उससे करस्पॉन्डिंग चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में। अरे बात समझ में ना, इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यही कारण था, मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट किस में बदल जाता है, तो सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे मैंने इसीलिए बताया कि देखो जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा क्या रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा, तब मेरा ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें हो जाएगा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। कितना आसान है, अरे बात समझ में? यस अब देखो वैसे ही Yes, प्रेजेंट sir. परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तो सबसे आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड की जगह पे क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। अरे बात समझ में ना, यानी हैव की Yes, जगह पे क्या हो sir. जाता है, हैड हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। यहाँ पे सेड क्या बता रहा है, व्हाट डज इट टेल, क्या बता रहा है, बताओ तो मेरे को कि ये सेंटेंस It is मेरा in past. रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट टेंस में। जब इसको Yes, इनडायरेक्ट sir. में करेंगे तो ही सेड इन्वर्टेड कोमा हटा और क्या यूज हुआ, दैट। अब That, देखो फर्स्ट that. पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही He. के अनुसार। ही के अकॉर्डिंग, ही हो गया। ओके, अब Yes. देखो यहाँ पे आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अब देखो यहाँ से सभी को इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर को याद करना कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को याद करना। यहाँ पे सभी कोई को समझ में आ रहा होगा, राइट एवरीवन। अभी तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, बाद में तो खुद से समझना पड़ेगा कि कौन सा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, राइट एवरीवन। और ये याद करने काफी ज्यादा सिंपल है कि नहीं है? आप दो Yes, तीन बार sir. स्ट्रक्चर को लिखोगे, देन उसके बाद आप पहचानने लगोगे, सेंटेंस को देखकर पहचानना स्टार्ट करोगे, पहचान जाओगे। अब मैं कल से ना 5-5 सेंटेंस आप लोग को दूंगा और पूछूंगा कि बताओ ये कौन सा टेंस का है। ओके, जैसे मैं टेंस का प्रैक्टिस करवा रहा था। इसलिए जब तक नरेशन आपका कंप्लीट नहीं होता है, आप लोग एटलीस्ट टेंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा, टेंस को रिवाइज करते रहिएगा और स्ट्रक्चर पे तो एकदम कमांड कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर पे कमांड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, he said that he had passed the examination, he had passed the examination। अरे बात समझ में ना, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जा रहा है, सब्जेक्ट के, तो ही हो जा रहा है। Subject. ओके, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, he said I have written a letter, तो he said that I किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, he के अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, आफ्टर दैट वर्ब 3। तो he had written a letter। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। No, ओके sir. एवरीवन, No, sir. अब उसके आगे देखो, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहता है वो क्या आ जाता है, बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो किस में चेंज हो जाता है, तो पास्ट पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस
has, have, after that, been, verb for, since और for, right everyone? तो मैंने जैसे बताया यहाँ पे देखो, she said, सेंटेंस में मेरा किसमें है? पास्ट टेंस में। सेंटेंस में किसमें है? पास्ट टेंस में। she said that she had been working since morning। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो, तो जैसे हमने देखा प्रेजेंट टेंस का चारों फॉर्म किसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाता है? पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है ना, राइट एवरीवन? हमने देखा वन बाय वन करके, हमने देखा ना वन बाय वन करके, हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जा रहा है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस टेंस में रह रहा है? पास्ट टेंस में। अब देखना, बट अब एक नया क्वेश्चन कि सर रिपोर्टिंग वर्ब भी मेरा पास्ट टेंस में हो, आड़ी बात समझ में, और रिपोर्टेड स्पीच भी अगर सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो किस में चेंज होगा? अच्छा, एक बात याद करना, ठीक है, मैंने आप सभी को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो इसी जन्म में मैंने पढ़ाया था आप सभी को, राइट एवरीवन? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का पास्ट होता है। मैंने पढ़ाया था ना? Yes, जो sir. पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, वो किसका पास्ट होता है? पास्ट का भी पास्ट होता है। यानी यहाँ से मेरा क्लू मिल गया, याद हो गया मेरे को एक लाइन में कि जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में हो? पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? तो सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम गाइस? टेल मी। यानी यहाँ से हम लोग को मिला, एक तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में भी रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट में भी रहेगा, तब भी हम उसे किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। दूसरा ये मिला कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच मेरा क्या हो कि वो भी सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तब हम क्या करेंगे? इसे हम, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। क्या सभी कोई को समझ में आ रहा है जो मैं कुछ बोल रहा हूं? ऑनेस्टली आप लोग को बोलना है, यू हैव टू स्पीक ऑनेस्टली। यस सर, अपूर्वा ओनली सेइंग दैट। अपूर्वा केवल बोल रही है, और किसी Yes, को समझ sir. में नहीं आया? चलो मैं एग्जांपल देते हैं ना, तो समझ में आएगा इसके बाद। आस्था, यस सर, वेरी गुड। और ये सारा अपलोड है, आप लोग ना इसका फेयर करो, ओके एवरीवन, फेयर करो आप लोग, और प्रॉब्लम हो तो वहां पे पूछो। इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। नरेशन इज नॉट ए इजी चैप्टर, ये इजी चैप्टर नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं इसको काफी ना इजी वे में आप लोगों को समझा रहा हूँ, अरे बात समझ में, काफी इजी वे में, वन लाइन बाय लाइन बनाकर, देख रहे हो ना, पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर सारा कुछ समझा रहा हूँ। और चाहता तो एक साइड की तरफ लिख देता प्रेजेंट और एक साइड की तरफ पास्ट, फॉर एग्जाम्पल में देता, हो जाता। बट अब देखो क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। ये सारा मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है, ओके? इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ो, जम के पढ़ो, और यही सोचना है अब की बार ये नरेशन लास्ट है। अरे बात समझ में ना? 9th में ही कंप्लीट करना है, 10th में मैक्सिमम फोकस करना है मैथ पे, साइंस पे, 9th में ग्रामर का पार्ट क्लियर, ओके? ओके एवरीवन, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। देखिए आपको, और समझना चाहते हो तो क्या नहीं हो पाएगा, सारा कुछ आप लोग समझ सकते हो। ये तो इंग्लिश है, काफी इजी है, काफी इजी। यहाँ पे तो माइंड का यूटिलाइज भी नहीं करना है, ओके? अब देखो, he said the horse died in the night। तो देखो, तो ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे क्या मैं रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में लिख सकता हूँ? टेल मी एवरीवन, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? Yes, sir. अब देखो, the horse Yes. died, तो डाई का ये Yes, sir. सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म डाइड इन द नाइट। Yes, sir. क्या यहाँ पे हैड लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना? No, sir. क्या यहाँ पे हैव लगा Simple हुआ है? नहीं past. लगा हुआ है, तो यानी सिंपल पास्ट। तो देखो, ये अब जो रिपोर्टेड स्पीच जब इनडायरेक्ट स्पीच में किसमें बदल जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट में। मैंने ऐसे क्यों बोला? तो मैंने पढ़ाया था कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट का भी क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, मैंने बताया था ना, देख लो। तो क्लू से समझने के लिए, यहाँ पे भी पास्ट और यहाँ पे भी पास्ट, तो जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में किस में हो जाएगा? पास्ट के पास्ट टेंस में। तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द पास्ट। जैसे ही हैड, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट एवरीवन? क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? टेल मी एवरीवन। फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोले? मैंने बोला पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? Right, sir.
राइट राइट। Right, sir. तो देखो राइट है, तो he said that the horse had died in the night। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, क्या कोई नो प्रॉब्लम है? सर। तो ये भी रूल समझ में आया कि अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, मैं फिर से समझा रहा हूँ, पास्ट टेंस में हो, ठीक है ना, तो और रिपोर्टेड स्पीच में मेरा क्या हो, पास्ट टेंस में हो, डायरेक्ट स्पीच में, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच मेरा किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अच्छे तरीके से याद हुआ? अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही सेड आई फाउट विथ अ टाइगर, ठीक है, तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा, दैट लगा, ओके, और आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही के अकॉर्डिंग, ही और हैड फाउट इन अ विथ अ टाइगर, विथ अ टाइगर। देखो क्यों यहाँ पे तो फाइट फाउट सेकंड वर्ब यूज हुआ है। अब देखो, अब एफ नंबर पॉइंट समझो, अ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके, अब समझना एक और रूल कि जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में होगा ही, जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो, तो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो वो किस में मेरा चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। खुशी इसको इरेज कर दो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके एवरीवन, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर से समझिएगा, मैंने क्या बोला, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, बताओ सब, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में। और रिपोर्टेड मेरा जो हो, रिपोर्टेड स्पीच मेरा किस टेंस में है, Past continuous tense. पास्ट पास्ट कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस। टेंस। मैंने यही बोला, ये वाला तो सेम रहता है, बट दैट के बाद कहानी स्टार्ट हो जाता है टेंस को चेंज करने वाला, ठीक है ना, दैट के बाद कहानी स्टार्ट हो जाता है टेंस को चेंज करने वाला, और वो क्या हो जाता है, सी हैड बीन प्लेइंग, आई किस में बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सी, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, चलो बताओ तो दृष्टि मेरे को आप, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर, Subject plus had plus been plus verb for plus since या for plus object। ओके, तो देखो यहाँ पे तो सिंस फोर नहीं है, तब भी ये हैड बीन लगेगा, लगेगा ना, तो हैड बीन प्लेइंग। अरे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया? तो यस देखो सर। हमने अगर ध्यान से देखे हम लोग, तो हमने ये नोटिस किया, ओके, हमने ये नोटिस किया कि नरेशन में अगर टेंस में चेंजिंग करना रहता है, ठीक है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में आ जाता है, तब हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले प्रेजेंट टेंस का चारों टेंस, ये मालूम चल गया किसमें टेंस चेंज हो जाता है, तो अपने क्रॉसपॉन्डिंग करने का मतलब क्या है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ओके, हमारी बात समझ में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाता है। क्लियरली एवरीवन, ये सारा कांसेप्ट आप सभी के माइंड में बैठ गया क्या, ये Yes, क्लियर हुआ sir. कांसेप्ट? ओके, अब हम आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि पास्ट में दो ही पढ़ना है, किस किस को पढ़ना है, पास्ट में दो ही पढ़ना है। एक क्या, जब सिंपल पास्ट टेंस में रहे, सिंपल पास्ट टेंस में रहे, तो मेरा किस में बदल जाएगा, बोलो सब, आप सब, सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ रहा है, मन प्रफुल्लित हो उठा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, पास्ट में एक और बताया कि अगर कंटिन्यूअस में रहता है तो वो किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप पूछोगे सर, तो अब आप पूछोगे सर, तो आपने तो दो पास्ट टेंस को बताया ही नहीं, कौन कौन सा नहीं बताया, तो आपने एक पास्ट परफेक्ट के बारे में चर्चा नहीं किया, और एक आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा नहीं किया, राइट, कि अगर वो रहेगा तब वो किस में चेंज होगा। Yes, तो sir. इसमें तो देखो, जहां पे पास्ट परफेक्ट रहेगा ना टेंस, जहां पे पास्ट परफेक्ट रहेगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बना देना, ओके, और जब रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसको भी पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देना। अरे बात समझ में, यानी कि उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो क्या आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस क्लियर हो गया नरेशन में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, फ्यूचर Yes, sir. सबसे आसान है, फ्यूचर बनाना जिस तरीके से सबसे आसान होता है, ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। अब देखो कैसे ये इजी है, तो फ्यूचर में जहां पे भी आपको विल देखेगा ना, विल देखने को मिलेगा, आप उसको वुड में चेंज कर देना, किस में चेंज कर देना, वुड में, Would. और
सेल जहां पे देखने को मिले उसको आप चेंज कर देना शुड में। बट अकॉर्डिंग हम लोग को देखना भी है कब किस में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है द सेल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड। सेल किस में चेंज हो जाता है? शुड में। आई बात समझ में? वैसे ही विल आपका किस में चेंज हो जाएगा? विल आपका किस में चेंजिंग हो जाएगा? वुड में। बात को समझना, अब ध्यान से सुनो सब। पहले तो ये कब चेंज होता है? तो जब कंडीशन है कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में हो? पास्ट टेंस में। तो ही सेड टू मी, यहाँ पे आपकी बार ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। सारी बात समझ में ना? तो देखो ही सेड टू मी किस में बदल जाएगा? टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा दैट, इन्वर्टेड कोमा हटा किसका यूज करते हैं? दैट। अब बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब अच्छा तो ही हो गया। मैंने आप लोगों को टेंस में पढ़ाया था कि जनरल फॉर्म जब होता है तो ही के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल ने विल का। तो विल का पास्ट क्या होगा? विल का पास्ट क्या होगा? he would work at night। जो बैकग्राउंड साउंड की जिसके तरफ से आ रहा है ना, आप थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लो, ओके? क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। You all are sincere. Whenever you are finding such kinds of case, then you have to do from your own self. हम लोग को कहना ना पड़े, आप लोग अपने से कर लो, okay everyone? तो अब देखो, तो मैंने क्या बताया? He told me that he would work at night। अब जनरली ना यहाँ पे लोग टेंशन में आ जाता है कि सेल को आपने बताया था सर कि शुड में चेंज करो। नहीं 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 नहीं, जब ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ही सेल शुड का हम लोग डिसीजन फिक्स करेंगे। क्या ये सारी बात सभी को समझ में आया? यस सर। यस सभी सर। कोई बोलो, सभी कोई बोलो तो थोड़ा सा देखो। सर यहाँ पर नरेशन कंप्लीट हो गया? Yes, sir. नहीं नहीं, अभी तो नरेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तो नरेशन स्टार्ट हुआ है, ओके? अब देखो, तो अब मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को देखो और मेरे साथ बताओ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, दे सेड, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है? रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है? बताइए तो। पास्ट। पास्ट में। तो यानी कि इधर भी हम चेंज करेंगे, करेंगे ना? देखो Yes, दे sir. सेड, यहाँ पे दे मेरा क्या है? सब्जेक्ट, ओके? पहले कुछ दिन ना 10 क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चंस को आपने पहले सब्जेक्ट, वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन ये सब लिख के बनाओ, काफी अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर होने के बाद बहुत अच्छे से आप सारा सही बना सकते हो, और इससे ना आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है, ये एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो दे सेड, फर्स्ट पर ये यहाँ पे दे क्या आपका, ठीक है ना? थर्ड पर्सन है, यहाँ पे तो पर्सन चेक नहीं करना है, सब्जेक्ट। तो दे क्या आपका? सब्जेक्ट। सेड, ओके? यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, राइट एवरीवन? शैल, हैव, डन। और यहाँ पे आवर देखने को मिल रहा है, ये भी क्या होता है आपका? फर्स्ट फॉर्म ही है ना, आवर जॉब। आवर क्या है यहाँ पे? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बताओ? क्योंकि जॉब क्या है यहाँ पे? नाउन है। यस सर, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब यस देखो, सर। तो अब इसको बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना? इतना दिमाग क्या लगाना है? तो दे सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? इसको चेंज करने वाला कोई नहीं है, इसको बदलने वाला कोई नहीं है, बेचारा अकेले है तो अकेले इसको रख दो। तो दे सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा, क्या यूज किया मैंने? दैट। अब देखो वी मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, का प्लूरल फॉर्म, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? दे। तो दे हो जाएगा। अब अब ये बताओ, दे के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं जनरल सेंस में या सेल का यूज करते हैं? वो। विल। तो पास्ट में आएंगे वुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यस सर। हैव, ओके? हैव डन। अब देखो हैव डन, अब उसके आगे देखते हैं। आवर, आवर मेरा क्या है? फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ना? अरे बात समझ में ना? सब्जेक्ट को देयर हो जाएगा। तो देयर हो जाएगा और जॉब। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी कोई को? यस सर। चलो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना? उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार फिर से, ओके एवरीवन? जो कुछ भी हमने पढ़ा है एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से सारा कुछ हम लोग को समझ में आ जाएगा, ओके? तो पहले हमने पढ़ा, ओके? पहला हमने रूल पढ़ा कि जब व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, क्या होता है आपका? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही नहीं बोलेंगे, कोई भी प्रेजेंट टेंस, ओके? कोई भी प्रेजेंट टेंस, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो
ओके और फ्यूचर टेंस में हो तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज करते हैं, यस और नो? बताइए मेरे को। No, क्या sir. रिपोर्टेड, सभी कोई बोलो क्या? एम आई ऑडिबल एवरीवन? नो सर, वेरी गुड। चलिए Yes, sir. Yes. तो क्या चेंज करते हैं, दिस इज माय क्वेश्चन, क्या हम लोग चेंज करते हैं? बताओ मेरे को आप लोग। नहीं करते हैं ना। बट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में आ जाता है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय? Yes, sir. करते हैं। अब देखो तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रेजेंट टेंस रहता है तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। पहला मैंने बताया आप लोगों को, मैंने बताया ना। सेकंड में मैंने बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी आपका पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस किसमें बदल जाता है? टेल मी फास्ट, टेल मी एवरीवन। सर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। वेरी गुड, ओके अब समझिएगा। फिर मैंने क्या बोला, सभी कोई को बोलना है, ओनली वन गाइस इज गिविंग आंसर। फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया जब आपका ओके क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट टेंस में रहता है। ओके एवरीवन, रिपोर्टिंग वर्ड किस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है। ओके और रिपोर्टेड स्पीच मेरा अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में चेंज हो जाता है? बताइए मेरे को। Past perfect continuous. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। Past perfect Okay. continuous. कंटिन्यूअस, यहाँ तक मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ड मेरा पास्ट टेंस में है बट रिपोर्टेड स्पीच अगर मेरा पास्ट परफेक्ट में है तो क्या चेंज करेंगे? No, sir. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या No चेंज करेंगे? change. ओके और No फ्यूचर में change. मैंने क्या बताया कि शैल विल किसके अकॉर्डिंग बदल जाता है? शुड और वुड के अकॉर्डिंग। Would ओके के। Yes, sir. वुड के अकॉर्डिंग बदल जाता है। और मान लो कि पहले ही से शुड और वुड में बदला हुआ हो तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, नहीं ये भी करते। समझ लेना। ओके अब देखो, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू डू राइट नाउ, इसे अभी हमें करना है। ओके चलिए करते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को करते हैं, अरे बात समझ में ना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। ओके चलो एक करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को, एक करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग वर्ड मेरा किस टेंस में है बताओ सब। अब Simple. चलो तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखाओ, बनाओ तो मेरे को, और बना के अभी टेक्स्ट करो। बनाओ आप सभी। देखते हैं किसका आंसर फर्स्ट करेक्ट आता है, एंड आई विल टेल, मैं आप लोगों को बताऊंगा। He told me that, रजनीश कुमार बनाया, he told me that he was my friend, very good। अपूर्वा, he told me that he was my friend, he told me that he was my friend, very good, very good, very good everyone। अनुजा, very good, आप सभी सही बना रहे हो, वेरी गुड। ये गड़बड़, दृष्टि कैसे रॉन्ग हो गया, इस कैसे लगेगा, पास्ट में है ना Sir, वो गलती से टाइप हो गया था। तो ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट करना है। और दृष्टि नेक्स्ट में ना अच्छे तरीके से सारा कुछ आप रिमेम्बर कर लीजिएगा। ओके Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क, they told us that they were giving चलिए चलिए, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। ओके अब आप लोग मैसेज करना स्टॉप करो, जिन लोगों ने भी आंसर बताया है आप बताना, उसके बाद किनका राइट था और रॉन्ग था। ओके अनुजा, अब चलिए अब देखते हैं। ओके पहला क्वेश्चन सभी का सही है। ओके तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ही सेड टू मी, तो यहाँ पे क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, देखने से लग रहा है यहाँ पे, और क्या एक ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, यानी सेड किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। Told. He told me, इन्वर्टेड कॉमा हटा,
that फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग Subject. अब देखो Object के यहाँ पे अनुसार। क्या है, अब देखो यहाँ पे मेरा said है यानी पास्ट है, तो ये भी मेरा किस में हो जाएगा, am पास्ट में हो जाएगा। तो ही के बाद क्या लगेगा, was। ओके अब योर सेकंड पर्सन है, तो मी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माय फ्रेंड। कोई प्रॉब्लम इसमें, यानी ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड, ये सभी का सही था। वेरी गुड एवरीवन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट। ओके तो देखो दे सेड टू अस, तो दे क्या सब्जेक्ट, अस क्या ऑब्जेक्ट, वी क्या है फर्स्ट पर्सन। रजनीश मैंने बोला कि देखो, ओके They said to us, we are giving you a nice present. अब देखो तो we क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन का क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। you क्या है आपका सेकंड पर्सन। सारी बस समझ में ना। अब देखो they told किसमें बदल जाएगा, they told us इन्वर्टेड कॉमा हटा that we किसके अकॉर्डिंग, तो they के अकॉर्डिंग they। अब यहाँ पे आर हट के क्या हो जाएगा वर्ड, they were giving। अब देखो you किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा they were giving us a nice present, they were giving us a nice present। ओके एवरीवन, तो ये दोनों क्वेश्चन किसका सही है मैसेज करो, तो आई हैव टू सी दैट किनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अक्षर सर मेरा आई, वेरी गुड अक्षर। अनुजा मी, वेरी गुड अनुजा। दृष्टि समझ आ गया सर अच्छे से, वेरी गुड दृष्टि। कितना करेक्ट हुआ दृष्टि आपका। अपूर्वा देन यू हैव टू फोकस, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखो, दिस इज नॉट हार्ड अपूर्वा, ओके। और ये अभी ना आपका ये समझो तो मॉडरेट लेवल चल रहा है, अंडरस्टूड सर। साकेत वेरी गुड साकेत। दृष्टि मी करेक्ट है सर बोथ, वेरी गुड दृष्टि, गुड कीप इट अप, वेरी गुड एवरीवन। ओके तो चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं गाइस। ओके आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट्स काफी इजीली। ओके सो आज जो मैंने बोला अपूर्वा सिल्ली फॉल्ट इन सेकंड क्वेश्चन, ओके दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन डू इट अपूर्वा, आप कर सकती हो। ओके तो चलिए आज जो कुछ भी हमने पढ़ा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है व्हाट इज योर होमवर्क, कि आप लोगों का होमवर्क क्या है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग थ्रोली ऑफ नरेशन। नरेशन का सारा पार्ट जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बेसिक से बताना स्टार्ट किया है, थ्रोली पढ़ना है। ओके और वीडियो को, जो वीडियो आप लोगों का अपलोडेड है उसको आप एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स देखो नरेशन में। साकेत बोल रहे हैं कल आपने बोला था सर अपने से समरी लिखने में बहुत अच्छा लगा लिखकर, वेरी गुड साकेत, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है तो वैसे ही अब नरेशन पे भी फोकस करना है। और अब ना आप प्रेजेंट टेंस, आप देखिएगा आप लोग के बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसको बनाना स्टार्ट करो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का। ओके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जितना भी क्वेश्चंस होगा यू हैव टू मेक इट। ओके गाइस दिस इज योर होमवर्क। सारी बात समझ में ना, जितना भी मैंने पढ़ाया है अब आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन इस पे मिलेगा बनाने को। ओके सो दिस इज योर होमवर्क व्हिच यू हैव टू डू। आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। ओके एवरीवन, या किसी को अभी भी कोई क्वेरी है देन यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो। सर अभी और क्या पढ़ना है इसमें? अभी तो इसमें इंट्रोगेटिव पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। ओके सभी को नो सर ऑल क्लियर। ओके वेरी गुड गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में सर आप क्या पढ़ाइएगा, बी रेडी, तैयार रहो, देखो क्या पढ़ाते हैं। ओके बाय एवरीवन। बाय सर।